بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے ہندوستان کے ایک عظیم بادشاہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا تذکرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس تذکرے کو، اس بائیوگرافی کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہندوتوا اور مسلم مخالف متعصب ہندو تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کو پھیلاتی رہتی ہیں، اور بالخصوص مسلم حکمرانوں اور ان حکمرانوں میں بھی شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے متعلق جھوٹے اور غلط نظریات پھیلائے جاتے ہیں، اور تاریخی طور پر غیر ثابت شدہ باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ ان کی بائیوگرافی بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان تمام غلط نظریات اور ان کے جھوٹے پروپیگنڈوں کا توڑ کیا جا سکے۔ تو چلیے اورنگزیب عالمگیر کی مختصر بائیوگرافی آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ پیدائش اور بچپن کی بات کی جائے تو ان کی پیدائش 1618 میں ہوئی۔ مکمل نام ان کا ابو المظفر محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر تھا۔ ان کی پیدائش 3 نومبر 1618 کو دہود، گجرات میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام شہنشاہ شاہ جہان تھا اور والدہ ملکہ ممتاز محل تھیں، جن کے نام پر تاج محل بنا گیا۔ شاہی اولاد ہونے کے باوجود سادہ، منظم اور عبادت گزار طبیعت کے مالک تھے۔ تیر اندازی، گھڑ سواری، فقہ، حدیث، تفسیر اور عربی اور فارسی ادب کے باضابطہ تعلیم حاصل کیے ہوئے تھے۔ کم عمری سے سخت محنت کرنے والے، نظم و ضبط پسند اور زہد و تقوی کے لیے معروف تھے۔ 1640 کے قریب شکار کے سفر میں اورنگزیب پر ایک پاگل ہاتھی نے حملہ کیا۔ گھبراہٹ کے بجائے انہوں نے پورے حوصلے سے اس کا مقابلہ کیا۔ یہ واقعہ شاہ جہان نے خود بھی دیکھا اور اسی دن کہا کہ یہ میرا بہادر ترین بیٹا ہے۔ 1636 سے 1658 تک یہ ان کی جوانی اور عملی تربیت کا دور ہے۔ چنانچہ ان پر پہلی بڑی ذمہ داری دکن کی صوبیداری کی پڑی۔ چنانچہ 1636 سے 1644 تک شاہ جہان نے نوجوان اورنگزیب کو دکن کا گورنر مقرر کیا۔ احمد نگر، بیجاپور اور گولکنڈہ کی سیاسی صورتحال کو سنبھالا۔ انتظامی مہارت، مالی نظم اور فوجی مہارت اور قابلیت شاندار ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ گجرات، ملتان اور کابل کے بھی گورنر رہے۔ ہندوستان کی 3 اہم ترین گورنریاں ان کے سپرد ہوئیں، چنانچہ گجرات، ملتان اور سندھ، اور اس کے علاوہ کابل اور قندھار کی سرحدی نگرانی ان کے حصے میں آئی۔ اگر ہم شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے مذہبی رجحان کی بات کریں تو جوانی سے ہی تہجد گزار، قرآن کے حافظ، شریعت کے پابند تھے اور صوفیانہ مزاج رکھنے والے آدمی تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی ڈائری میں لکھا تھا کہ دنیا فانی ہے، بادشاہت ہو یا وزارت، انجام موت ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کی علمی دلچسپی کی بات کی جائے تو فقہ اور حدیث کے کئی اساتذہ سے براہ راست تعلیم حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے فتاوی عالمگیری کی تدوین کرائی، جو آج بھی دنیا بھر میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ان کے تخت نشینی کی طرف۔ چنانچہ 1657 سے 1658 تک تخت کا جھگڑا ہوا۔ شاہ جہان کی بیماری اور بھائیوں کی جنگ شروع ہو گئی۔ 4 بھائی تخت کے امیدوار تھے، جن میں سے ایک کا نام دارا شکوہ، دوسرے کا شاہ شجاع، تیسرا مراد بخش اور چوتھا اورنگزیب تھا۔ چنانچہ درمٹ کے معرکہ میں مراد بخش کے ساتھ اتحاد ہوا۔ سمو گڑھ کی جنگ دارا شکوہ کو شکست ہوئی اور خجوہ کی جنگ شاہ شجاع کا خاتمہ ہوا اور مراد بخش کو گرفتار کر کے تخت حاصل کر لیا گیا۔ شاہ جہان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ چنانچہ شاہ جہان کو قتل یا سخت قید نہیں کیا گیا، بلکہ صرف آگرہ کے قلعہ میں شاہی سہولیات کے ساتھ رکھا گیا تاکہ فتنہ دوبارہ نہ اٹھ سکے۔ اس کے علاوہ شاہ جہان کے ساتھ سب لوگوں کو ملنے کی بھی اجازت تھی۔ تاریخی طور پر اس کے شواہد موجود ہیں۔ اب شروع ہوتا ہے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی بادشاہت کا دور، جو کہ 1658 سے 1707 تک محیط ہے۔ چنانچہ اگر ہم اورنگزیب عالمگیر کی بادشاہت اور اس کے طرز عمل کی بات کریں اور ان کی پالیسیوں کی بات کریں تو عدل، شریعت اور نظم ان کے بنیادی اصول تھے۔ رشوت اور ظلم کے خلاف سخت قوانین جاری کیے اور خود انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ اگر ہم اہم اصلاحات کی بات کریں تو شراب، جوا، بدکاری اور ناجائز ٹیکس ختم کیے، فوجی اور عدالتی نظام کو مضبوط کیا، اور اس کے علاوہ علمی طور پر فتاوی عالمگیری کی تدفین 500 سے زائد علماء کے ساتھ مل کر کی۔ اگر ہم شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی فوجی فتوحات کی بات کریں تو دکن کی آخری 2 مضبوط ریاستیں گولکنڈہ اور بیجاپور کو مغل سلطنت کے اندر شامل کیا۔ اس کے علاوہ مرہٹوں کے خلاف طویل مگر مسلسل جدوجہد کی۔ اگر ہم شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی کچھ ذاتی صفات کا تجزیہ کریں تو دن رات عبادت گزار، قرآن کے حافظ، خود کاپی لکھنے والے، وفات کے بعد کفن کے پیسوں کے لیے بھی خزانہ استعمال نہیں کیا گیا۔
अपनी बुनी हुई टोपियों की कमाई अपने पास रखते थे और उन्हीं से ही अपने अखराजात चलाते थे। 20 फरवरी 1707 में अहमद नगर में वफात पाई। वसीयत की कि मुझे बगैर कीमती मज़ार के सादा कब्र में दफन किया जाए, और मौजूदा आरामगाह उनकी खुल्दाबाद महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। ये तो मुख्तसर सी औरंगज़ेब आलमगीर की बायोग्राफी थी, जो हमने उनकी पैदाइश, बचपन और बादशाहत के हुसूल को इख्तिसार के साथ बयान किया। अब हम आते हैं हिंदुत्वा यानी हिंदू लॉबी, जिसमें आरएसएस, बीएचपी और वीएचपी जैसी तंजीमें शामिल हैं। आरएसएस से मुराद राष्ट्रीय सेवक संघ, इसके अलावा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा दौर में भी भारत की हुक्मरान जमात है, और इसके अलावा वीएचपी विश्व हिंदू परिषद नामी इंतहा पसंद मुतअस्सब बदबूदार हिंदू तंजीमें, वह मुग़ल तारीख खुसूसन औरंगज़ेब आलमगीर के खिलाफ बड़े पैमाने पर झूठ फैलाते हैं ताकि मुसलमानों को तारीखी तौर पर जालिम साबित किया जा सके। इसके अलावा हिंदू वोट बैंक को जज्बाती तौर पर बनाकर अपने हमनवा बनाया जा सके, और तीसरे नंबर पर मुसलमानों की सदियों की हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा की जाए। लेकिन तारीखी हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स और मुख्तलिफ है। चनाचे इन्हीं प्रोपोगंडों में से पहला प्रोपोगंडा ये है कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को तबाह किया। चनाचे प्रोपोगंडा कहता है कि औरंगज़ेब ने हज़ारों मंदिर तोड़े, हिंदू मज़हब का दुश्मन था। लेकिन मुस्तनद तारीखी हवालों के साथ अगर हकीकत को हम देखें तो 300 साला मुगलिया दौर में सिर्फ 3-4 बड़े मार्के ऐसे हैं जिनमें सियासी बगावत या गद्दारी की वजह से मंदिरों पर कार्रवाई हुई, मजहबी बुनियाद पर नहीं। चनाचे 1700 मंदिरों को औरंगज़ेब ने सरकारी ग्रांट दी। ये रिकॉर्ड आज भी राजस्थान, बनारस, अलवर और ग्वालियर की रियासती आर्काइव्स में मौजूद हैं। इसके अलावा बनारस के 100 से ज़ायद मंदिरों के मुहाफिज औरंगज़ेब के वक्त में शाही वजीफा लेते रहे। इसके अलावा सोमनाथ के मंदिर की बात की जाए तो इसे औरंगज़ेब ने दोबारा तामीर के लिए ज़मीन और फंड दिया। ये रिकॉर्ड आज भी सौराष्ट्र आर्काइव्स में मौजूद है। औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में मथुरा के मंदिर के खिलाफ एक कार्रवाई की गई और उसको मुनहदिम किया गया। चनाचे इसी को बुनियाद बनाकर हिंदू बुनियाद परस्त और इंतहा पसंद इस बात पर दावा करते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर और मुग़ल हिंदुओं के और मंदिरों के मुखालिफ थे। लेकिन क्या तारीखी तौर पर मथुरा के हिंदू मंदिर पर आलमगीर की कार्रवाई क्या सिर्फ मजहबी बुनियाद पर थी? अगर तारीख को हम खंगालें तो हमारे सामने ये हकीकत आती है कि मथुरा के मंदिर के ऊपर जो कार्रवाई की गई और उसका इन्हदाम किया गया, उसके पीछे मजहबी बुनियाद नहीं थी, बल्कि इसकी हकीकत ये थी कि चित्रकोट का राजा, जिसने मुगल रियासत के खिलाफ बगावत की थी, मंदिर में हथियार छुपा रहा था और उसको एक बेस कैंप और मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, जो कि मुगलिया सल्तनत के लिए एक साजिशी मरकज़ था। इसलिए उस पर हमला किया गया और सियासी बगावत को कुचला गया, ना कि मजहबी तौर पर। अगर वहां पर हथियार मौजूद न होते और उस मंदिर का तकद्दुस पामाल करते हुए हिंदू राजा उसको एक फौजी कैंप के अंदर न बदलता, तो कभी भी औरंगज़ेब उसके ऊपर हमला न करते। अगर औरंगज़ेब मजहबी बुनियाद पर मंदिर तोड़ता तो 49 साल की हुकूमत में हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा मंदिर आज मौजूद न होता, जबकि सब कुछ मौजूद है। और हकीकत यह है कि ये सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो कि मुसलमान दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी पर मुनहसर है। दूसरे प्रोपेगेंडे की बात की जाए तो वो ये है कि औरंगज़ेब हिंदुओं से नफरत करता था। चनाचे इस प्रोपेगेंडे के मुताबिक हिंदू मजलूम थे और मुसलमान जालिम थे। औरंगज़ेब की फौज का 33% हिस्सा हिंदू जागीरदारों पर मुश्तमिल था। राजपूत, जाट, मराठा सरदार इसकी फौज और दरबार में आला ओहदों पर फाइज थे। सबसे अहम मिरासी वजीर रघुनाथ पांडे हिंदू थे। इसके अलावा राजपूत खानदानों से उनके मजबूत ताल्लुकात थे। इसके अलावा जय सिंह, जो बाद में शिव जी को पकड़ने में आम थे, औरंगज़ेब के खुसूसी दरबारी थे। तीसरा प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि जिजिया टैक्स लिया जाता था, जो कि हिंदू दुश्मनी थी। चनाचे इस प्रोपेगेंडे के मुताबिक औरंगज़ेब ने जिजिया लगाकर हिंदुओं को गुलाम बनाया। लेकिन हकीकत यह है कि जिजिया सिर्फ गैर जंगी मर्दों पर था। ये पहले खुलफाए राशिदीन के दौर से चला आया है और इसके बदले रियासत उनकी हिफाजत की जिम्मेदार होती थी, उन पर फौजी खिदमत लाजिम नहीं होती थी। इसके अलावा हिंदुओं पर बाकी तमाम टैक्स हटा दिए गए थे। औरंगज़ेब ने सिविल टैक्स, नाजायज़ महसूल, सूद, मंडी के टैक्स सब खत्म कर दिए थे। जजिया 1579 में अकबर ने सियासी वजह से ख़त्म किया था, मजहबी वजह से ख़त्म नहीं किया था। इसके अलावा चौथा प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि औरंगज़ेब ने शिव जी को धोखे से मारने की कोशिश की। चुनांचे इस प्रोपेगेंडे के मुताबिक शिव जी महान थे, औरंगज़ेब ने उन्हें धोखे से कत्ल करने की कोशिश की। लेकिन हकीकत यह है कि शिव जी मुगल सल्तनत के खिलाफ मुसलसल बगावत कर रहे थे। ये मजहबी नहीं, सियासी मसला था। औरंगज़ेब ने शिव जी को माफ़ी, जागीर, मनसब दिया था।
لیکن शिव जी खुद दरबार से भाग गए। औरंगजेब ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया था। पांचवा प्रोपगंडा ये कहता है कि औरंगजेब सादा नहीं था, करोड़ों का खजाना लूट लिया था। इस प्रोपगंडे के मुताबिक वो मुनाफिक, धोखेबाज और सख्त गिर इंसान था। लेकिन हकीकत यह है कि औरंगजेब का जाती खर्चा टोपियां बुनकर बचता था और इसी पैसे से अपनी जरूरियात को पूरी किया करते। वफात पर उनके पास कफन के पैसों तक के लिए खजाने से कुछ नहीं लिया गया। मुगल तारीख का वाहिद बादशाह जिसने संगे मरमर के महल्लात नहीं बनाए, नाच गाने, शराब और अय्याशी पर पाबंदी लगाई और खजाना अवामी फलाह पर खर्च किया। छठा प्रोपगंडा ये फैलाया जाता है कि हिंदुओं ने मुगल दौर के अंदर गुलामी झेली और हिंदुओं पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। लेकिन क्या ये प्रोपगंडा हकीकत है? तो आइए इसका भी तज्जिया आपके सामने पेश किए देते हैं। चनाचे हिंदुस्तान के 75% जागीरदार मुगल दौर में हिंदू थे। तिजारत, ज़राअत, मुलाजमत, जागीरें सब उनके हाथ में थीं। हिंदुत्व प्रोपगंडा सियासी मफाद के लिए तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अगर हम इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करें कि हिंदुत्व ये प्रोपगंडा और झूठ क्यों फैलाता है, तो इसकी बुनियादी वजह इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी है। इसको आप सामने रखें। इसके अलावा मुसलमानों की सदियों पर मुहित हुकूमत को जुल्म बनाकर दिखाना, ताकि नई आने वाली नस्लों के सामने मुसलमानों को एक विलन के तौर पर पेश किया जा सके और उन्हें एक जालिम और जाबिर हुक्मरानों के तौर पर पेश किया जाए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उन लोगों को जिम्मेदार करार दिया जाए। इसके अलावा भारतीय हिंदू अवाम के जहनों में मुसलमान दुश्मनी भरना, ताकि अपनी नाकामियां और अपनी सियासी कमजोरियां उनके सामने न आए और कोई उनसे सियासी तौर पर नाकामियों पर सवाल न कर सके। इसके अलावा मुगल कारनामों को छोटा करके हिंदुत्व का बयानिया मजबूत करना, ताकि हिंदू अवाम अपने इसी इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी में पड़कर अपने सियासी और मजहबी गुरुओं से ये सवाल न करें कि तुमने हमारी औलादों के लिए और तारीख के अंदर क्या खिदमत सर अंजाम दी। तो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू बुतपरस्त मुशरिकीन अपनी नाकामी, नामुरादी, अपनी करप्शन और अपनी धोखाधही को छुपाने के लिए मुगल हुक्मरानों और तारीख के साथ छेड़खानी करके लोगों के जज्बात से खेलते हैं, ताकि लोगों को इसी जानिब मुतवज्जे करके उनको मगन रखा जाए और असल मौज़ूआत से उनको हटा दिया जाए। आज भी इंडिया के अंदर बेरोज़गारी, गुर्बत, भूख और सेहत के मसाइल अरूज पर हैं। लाखों लोग रात का खाना खाए बगैर सोते हैं और इसके अलावा बेशुमार लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिलाशुबा इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसमें तकरीबन 1.5 अरब के करीब इंसान रहते हैं। तो वहाँ पर ये मैनेजमेंट इस कदर बुरी है कि वहाँ की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लोगों को बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात देने से भी कासिर है। अब इन नाकामियों को छुपाने के लिए उन लोगों ने ये अच्छा तरीका निकाला है कि मुसलमान तारीख को तोड़ मरोड़ कर लोगों के जहनों में ये खन्नास और ये नफ़रत भरी जाए कि औरंगज़ेब ऐसा जालिम और जाबिर था कि उसने हिंदुओं को कत्ल किया, मंदिरों को तोड़ा, और जो भी मुसलमान हुक्मरान, चाहे वो मुग़ल हों, वो खिलजी हों, वो लोधी हों या गौरी और सूरी हों, वो मुसलमानों पर हिंदुस्तानियों पर और ख़ास तौर पर हिंदुओं पर जुल्म और सितम किया करते थे और अपना इक़्तिदार मजबूत किया करते थे। चनांचे इन चीज़ों में लोगों को उलझाने का मकसद यही है कि असल चीज़ से और असल मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाई जाए। और ये यकीनी बात है, जब इस तरह के मजहबी और अकीदे और नज़रिए की बातें सामने होती हैं, तो लोग फिर अपनी हुकूमत से ये सवाल नहीं करते कि आपने हमारे बच्चों की तालीम के लिए क्या किया, आपने मुल्क की तरक्की और तामीर के लिए क्या किया, हमें बुनियादी सहूलियात देने के लिए आपने क्या किया। आज आटा, खाना और 3 वक्त का खाना, इसके अलावा बैतुल खला, बिजली, गैस और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी देने में हुकूमत की क्या कारकर्दगी है, आज लोग इस पर सवाल नहीं करते, बल्कि वो इस बात पर ही खुश हैं कि आज बीजेपी उनको राम मंदिर बनाकर दे रही है, मुसलमान इलाकों के नाम बदल कर हिंदू नामों पर रखे जा रहे हैं, दीगर नई मसाजिद और मुसलमानों की तामीरात को निशाना बनाया जा रहा है और इसके पीछे लोगों के मजहबी जज्बात से खेलकर अपने सियासी मफादात और मकासद को हासिल किया जा रहा है। और भोली भाली सीधी सादी हिंदू अवाम, बजाय इसके कि वो अपने मुल्क के विकास और तरक्की के मुतालिक अपने अवाम, अपने हुक्मरानों और अपने हुक्मरान तबके से सवाल करते, उल्टा वो इन चीज़ों को देखकर खुश हो रहे हैं। तो मेरी हिंदू अवाम से भी गुजारिश है कि आप तारीख़ का खुद से मुताला करें, खुद से हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करें और अपने हुक्मरानों से ये सवाल करें कि आलमगीर ने जो कुछ भी किया वो तो चला गया, अब आप अपनी कारकर्दगी बताएं कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल कहाँ हैं, हमें रिश्वत और करप्शन से निजात मिल चुकी है, क्या हमारे मुल्क में हर बंदा पेट भर के खाना खा सकता है, क्या गरीब की ज़िंदगी आसान हो गई है,
کیا عوام اور جنتا کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں؟ لیکن ان لوگوں نے اتنی سازش اور اتنی چالاکی کے ساتھ یہ جال بنے ہیں کہ عوام کا ذہن ان باتوں پر جانے کے بجائے آج تاریخ کے دھندلکوں میں چھپا ہوا ہے، اور گزشتہ زمانے کے بادشاہوں پر لان تان کر کے وہ اپنے حکمرانوں سے خوش بھی ہیں، اور حکمران عوام سے اور جنتا سے داد وصول کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا، عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ حکمران کس پالیسی اور کس مقصد کے تحت یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ تاریخ کو مروڑنا، تاریخ کو حقائق سے ہٹ کے پیش کرنا اور اس کے اندر خود سے چیزوں کو داخل کرنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے، اور جو قومیں تاریخ کے ساتھ چھیڑخانی کرتی ہیں، تاریخ پھر ان کا نام و نشان مٹا دیا کرتی ہے۔ امید واسق ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ٹاپک اور یہ موضوع پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمیں سپورٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ساتھ میں موجود گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔